Hello guys, so in this video we will be studying the discontinuity of a first kind or a first type. So please watch previous video before starting this video, because in that video I have solved the discontinuity, that is the removable discontinuity, and the definition of discontinuity. So let us now understand this. If both LHL and RHL exist, okay, but they are not equal, so it means that a function fx is discontinuity of first type or first kind at a point A. We know that we can check the continuity and discontinuity at a single point, okay. If both LHL as well as RHL exist but they must not be equal, so then these types of discontinuity is known as the first kind of discontinuity of a function, okay. Let us understand with some question. This fx is equal to this at x equal to 7, okay. So this is our question. Now this is actually greatest integer function, also known as ceiling floor function, okay. This is known as floor function. So we know how to solve this at LHL, that is limit x tends to 7 minus we have we will have the value 6, and at limit RHL, limit x tends to 7 plus we have 7. You know how to find the limit for the greatest integer function, ठीक है. तो हम देख रहे हैं कि these both exist means they are not equal to infinity or they are not in the form of indeterminate form. They exist but they are not equal, okay. So fx has discontinuity of first kind, discontinuity of first kind. All right, ठीक है ना. Let us take another question, okay. So this is an example of a ceiling function, that is least integer function. This is denoted by this, नीचे नहीं रहेगा खाली, at x is equal to 9, ठीक है. सीलिंग फंक्शन नाम से पता चल रहा है जो सीलिंग पे है, जैसे कि ये फ्लोर फंक्शन है, तो ठीक है. तो 7 माइनस मतलब कुछ भी लो, जैसे कि 7 माइनस क्या लो सकता है 6.9. 7 माइनस जिसको नहीं पता है उसके लिए जैसे 6.9 ले लिया या 6.8 ले लिया. तो क्योंकि फ्लोर है तो फ्लोर इसका क्या है, फ्लोर तो इसका 6 है, ऐसे करते करते 6 पे जाएगा, तो इसीलिए 6, ठीक है. जैसे 7 है, 7 प्लस भी करोगे तो 7.1 7.2 करते करते, लेकिन इस सबका फ्लोर क्या है, वो तो 7 ही होगा. अब ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझोगे, ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखना तो उससे अच्छा से क्लियर होगा. तो इस तरह से, तो अब ये क्या है, सीलिंग फंक्शन है. सीलिंग फंक्शन में हम क्या देखते हैं, अब इसमें देखिएगा ये किस तरह से होता है. जैसे कि LHL है, ठीक है. LHL लिमिट x टेंड्स टू 9 माइनस में अब 8.9 8.8, तो अब क्या होगा ना, इसका ये 9 ही रहेगा क्योंकि इसका सीलिंग देखना है, ठीक है. तो इसका लीस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो इसका लीस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है. एंड RHL इसका लिमिट एक्सटेंड टू 9 प्लस ये हो जाएगा 10, ठीक है. तो इन दोनों में भी ये क्या हम देख रहे हैं कि इक्वल नहीं है, ठीक है. बोथ एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल, सो वी कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट fx हैज़ फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 9. ऑल राइट, so this is our next question. fx is given as ae1 by x plus b e to the power minus 1 by x when x is not equal to 0, this is combined, and k when x is equal to 0, ठीक है ना. So you have to find for the different values of a, b and k how many types of discontinuity of fx has at x is equal to 0, ठीक है. क्वेश्चन लिख देते हैं कि for different values of a, b and k how many type of discontinuity fx has at x is equal to 0, ठीक है. सो सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड द लिमिट
ओके, सोल्यूशन करते हैं, लिमिट निकालते हैं, एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, ठीक है, ये ए ई टू द पावर वन बाई एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स बाई ई टू द पावर वन बाई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ई टू द पावर वन बाई एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब मैं ई टू द पावर वन बाई एक्स कॉमन ले रही हूँ, आई एम गेटिंग ए प्लस बी ई टू द पावर माइनस टू बाई एक्स, ठीक है, बाई वन प्लस ई टू द पावर माइनस टू बाई एक्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, व्हेन आई विल पुट लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, मैं देख रही हूँ ज़ीरो नेगेटिव देने पर, ठीक है, टू बाई ज़ीरो, ठीक है, ये तो एक मिनट, एल एच एल में मैं क्या करी, एक सेकेंड, मैं वन बाई ई टू द पावर वन बाई एक्स कॉमन ली हूँ, बट यहाँ पर तो ज़ीरो दूंगी यहाँ अगर, तो ये तो नहीं होगा ना। मैं यहाँ एक काम करती हूँ, ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। देखो मैं इधर साइड में कर रही हूँ, एक सेकेंड रुकना। अच्छा, तो एक काम करती हूँ, मैं ये आर एच एल लिख देती हूँ, मतलब तो आर एच एल साइड में ये करना था इस तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है ना, तो जब आप ज़ीरो पॉजिटिव, ज़ीरो कुछ भी मतलब ज़ीरो दोगे लिमिट, तो ये ना ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखिए आप जब ज़ीरो यहाँ पर देते हो तो उसका वैल्यू इन्फिनिट होता है, ई टू द पावर इन्फिनिट, ई टू द पावर यहाँ पर बी भी है, ठीक है, ठीक है। ई टू द पावर यहाँ पर माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी, तो इसको लिख सकते हैं, ई टू द पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी वन बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी हो गया तो क्या हो गया, ये पूरा ज़ीरो हो गया, समझ रहे हैं, वन तो नीचे है ना, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो मतलब ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ए बच रहा है इधर, ठीक है, हमारे पास सिर्फ ए बच रहा है। अगर आप एल एच एल भी लेके करते तो कुछ होता नहीं है वैसे, एज सच आप ले ही सकते थे, मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो आप एल एच एल भी लेके करते तो आपका एल एच एल साइड ए आता, और आर एच एल में अभी जैसे अभी मैं एल एच एल कर रही हूँ, एल एच एल लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, तो अब हम इसमें अगर ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स ले लेते हैं, ठीक है, ई टू द पावर माइनस वन बाई एक्स कॉमन लेंगे, ई टू द माइनस वन बाई एक्स, तो इधर जो हमारे पास रहेगा वो ए ई टू द पावर माइनस टू बाई एक्स बचेगा और इधर बी बचेगा, ठीक है। अब हमको बी चाहिए, दोनों को अलग अलग दिखाना है, ठीक है। तो अब नीचे हमारे पास इधर ई टू द पावर माइनस टू बाई एक्स प्लस वन ऐसे बच रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब जब इस पर हम लिमिट लगाएंगे तो ये ज़ीरो पर जाएगा सेम टाइप का, तो यहाँ पर बी बचता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ए बचा है, यहाँ पर बी बचा है, एल एच आर एच एल ए एंड एल एच एल बी, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि अब हमको बताना है क्वेश्चन में, फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड के हाउ मेनी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ एक्स हैज़ एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसमें हमको बताना है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से देखो कि सबसे पहले नंबर वन, इफ़, ठीक है, इफ़ ए और बी अगर इक्वल आता है, इज़ इक्वल टू के, और इक्वल टू के होता है, हम जानते हैं अगर तीनों इक्वल हो जाए देन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। ये है फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड है, अगर a इज इक्वल टू बी है लेकिन नॉट इक्वल टू के है, तो दिस इज ऑलरेडी बीइंग satisfied in the previous video, it is already being taught you. Then f x has removable discontinuity. आर यू अग्रीइंग और नॉट? अगर k के बराबर नहीं हो मतलब फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं, ठीक है। बट 3 when a is not equal to b, so then fx has first type of discontinuity, ठीक है। नाउ अगर ऐसा हुआ कि अ फंक्शन fx has
एक सेकेंड, तो ये तीनों आप समझ गए कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू के, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन आर। ये हम समझ गए कि अगर a इक्वल टू बी आता है और इक्वल टू के आता है तो ये कंटिन्यूस है। लेकिन अगर दोनों बराबर आए और k के बराबर नहीं आए तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। एंड अगर दोनों ही बराबर नहीं आए, इन दैट केस ये है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। Are you getting and are you understand or not? Do you understand or not? इतना समझ गए तो मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ कि a function f(x) has discontinuity of first kind at x is equal to a from left if limit x tends to a minus fx is not equal to fa। ठीक है, पहले लिख लूँ उसके बाद समझा दूँ? पहले लिख लेती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, तो अ फंक्शन एफ एक्स हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे जिस चीज़ पे मैं अंडरलाइन करी उसको देखना, फ्रॉम लेफ्ट इफ़, अगर हमारा ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि राइट हैंड लिमिट, इसमें ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा कुछ तो आएगा, राइट हैंड लिमिट का भी कोई वैल्यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट काइंड बोला है, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आएगा, ये तुम अग्री कर रहे हो। लेकिन अगर फंक्शनल वैल्यू का जो फंक्शनल वैल्यू है वो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, वो मेरे राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ जाता है। सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 3 आ रहा है और फंक्शनल वैल्यू हमारा 3 आ रहा है, इसका मतलब राइट और फंक्शनल वैल्यू सेम है ना। तो इन दैट केस हमारा जो डिसकंटिन्यूटी है ये लेफ़्ट साइड से आ रहा है। इसको हम और अच्छे से समझे, चलो एक एग्जांपल से ही समझते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एट F2 हमारा 2 है। ठीक है, F2 का वैल्यू 2 है। अब जैसे कि LHL साइड से हमारा जो 2 नेगेटिव आएगा उसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब LHL साइड इसका 1 आने वाला है और RHL साइड इसका क्या आने वाला है? 2 ही आने वाला है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो फंक्शनल वैल्यू है और राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। तो डिसकंटिन्यूटी हमारा किस तरफ से आ रहा है? ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूटी जो है वो हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड ही बराबर नहीं है। सो दिस इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स इक्वल टू 2 फ्रॉम दी लेफ्ट। ये समझ आया सभी को? ठीक है, वैसे ही जो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड है, इसमें क्या है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस एक्स एट एक्स इक्वल टू 5, ठीक है, ये मैं सीलिंग फंक्शन ले रही हूँ। ठीक है, फ्लोर फंक्शन वो था। ठीक है, सीलिंग फंक्शन नीचे ऐसे होता है, बॉक्स ब्रैकेट नहीं होता उसमें। तो ये वाला इसमें देखो क्या, जब एट एफ ऑफ 5 में 5 इधर, जैसे कि आप LHL जैसे ही लोगे तो आपका जो LHL होगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि सीलिंग है। कुछ भी कम लेते हो 5 से तो उसका सीलिंग को अप्रोच करेगा ना, तो 5 ही रहेगा। बट RHL जो लेंगे वो 5 से कुछ ज़्यादा, तो उसका सीलिंग तो 6 को अप्रोच करेगा। मतलब राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है, बट हियर LHL एंड फंक्शनल वैल्यू क्या है? सेम है। तो हम कह सकते हैं इसको, दिस इज द फंक्शन एफ एक्स हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स इक्वल टू 5 फ्रॉम दी राइट, कि हमारा जो डिसकंटिन्यूटी है वो राइट हैंड साइड से, राइट हैंड लिमिट से है। ठीक है, ये समझ आया? यहीं पे ये कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ किस साइड से, तो उस हिसाब से ही है। अगर और एक चीज़ लास्ट में ये आएगी, अ फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट एक्स इक्वल टू फ्रॉम बोथ साइड। फ्रॉम बोथ साइड में क्या है कि अगर आपका LHL 2 है, RHL 3 है और फंक्शनल वैल्यू 4 है, सो उस केस में अगर तीनों ही किसी के बराबर नहीं है, देखो, तो उस केस में हम बोल सकते हैं दिस इज अ डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम दी
बोथ द साइड, RHL साइड से भी और LHL साइड से भी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।